Praise the Lord. Good morning. Grace and peace be upon all of you, dear family. Welcome to Hosting the Ark, day 26. Today we will study a better covenant with better promises. प्रेज लॉर्ड। प्रिय परिवार, आप सभी पर अनुग्रह शांति बनी रहे। होस्टिंग द आर्क दिन 26 में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहतर वाचा और बेहतर प्रतिज्ञाएं इस विषय पर अध्ययन करेंगे। The Ark of the Covenant was the central symbol of God's covenant with Israel. Inside the ark were the tablets of the law, Aaron's rod that budded, and the golden pot of manna. का संदूक इज़राइल के साथ परमेश्वर की वाचा का मुख्य प्रतीक था। उसके भीतर व्यवस्था की पट्टियां, हारून की कली लगी हुई लाठी और मन्ना से भरा सोने का पात्र रखा गया था। This represented God's covenant, His authority, and His provision. But the ark was only a shadow pointing to something greater. ये सभी परमेश्वर की वाचा, उसके अधिकार और उसकी व्यवस्था का प्रतीक थे, परंतु वाचा का संदूक केवल एक छाया था जो किसी महान व्यक्ति अर्थात प्रभु यीशु मसीह की ओर संकेत करता था। Hebrews chapter 8 verse 6 declares that Jesus is the mediator of a better covenant, established on the better promises. इब्रानियों 8:6 घोषणा करता है कि प्रभु यीशु एक बेहतर वाचा के मध्यस्थ हैं, जो बेहतर प्रतिज्ञाओं पर स्थापित की गई है। So under the Old Testament, Moses stood between God and the people, but under the new covenant, Jesus himself became our eternal mediator. पुरानी वाचा में मूसा परमेश्वर और लोगों के बीच मध्यस्थ था, परंतु नई वाचा में स्वयं प्रभु यीशु हमारे अनंत मध्यस्थ बन गए। Because Jesus lives forever, his priesthood never changes, his covenant never expires, and his promises never fail. क्योंकि प्रभु यीशु सदा जीवित हैं, इसलिए उनकी याचकाएं कभी समाप्त नहीं होती, उनकी वाचा कभी नहीं बदलती और उनकी प्रतिज्ञाएं कभी असफल नहीं होती। The old covenant depended upon the obedience of people, but Israel failed again and again. But the new covenant is established upon the finished work of Christ. पुरानी वाचा लोगों की आज्ञाकारिता पर आधारित थी और इज़राइल बार-बार असफल हुआ, परंतु नई वाचा प्रभु यीशु की पूर्ण की हुई कार्य पर आधारित है। So our relationship with God is no longer based on our performance, but on Christ's faithfulness. अब हमारा परमेश्वर के साथ संबंध हमारे कार्यों पर नहीं, बल्कि प्रभु यीशु की विश्वास योग्यता पर आधारित है। God promised, I will put my laws into their minds and write them on their hearts. Under the new covenant, God changes us from the inside out. परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में रखूंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा। नई वाचा में परमेश्वर हमें बाहर से नहीं बल्कि भीतर से बदलता है। On the night before the cross, Jesus lifted up the cup and said, "This cup is the new covenant in my blood." क्रूस पर जाने से पहले प्रभु यीशु ने कटोरा उठाकर कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। The old covenant was dedicated with the blood of animals, but the new covenant was established through the precious blood of the Son of God. पुरानी वाचा पशुओं के लहू से स्थापित हुई थी, परंतु नई वाचा परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा स्थापित हुई। Because of his sacrifice, the veil has been torn. Today, every believer has bold access into the presence of God. प्रभु यीशु के बलिदान के कारण मंदिर का पर्दा फट गया। अब प्रत्येक विश्वासी को परमेश्वर की उपस्थिति में निर्भय होकर प्रवेश करने का अधिकार मिला है। Hosting the ark today means living every day in God's presence through Jesus Christ. Not trying to earn His acceptance, but enjoying the relationship He has already given us. आज होस्टिंग द आर्क का अर्थ है कि हम प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताएं। हम उसकी स्वीकृति पाने के लिए प्रयास नहीं करते, बल्कि उस संबंध का आनंद लेते हैं जो उसने हमें पहले ही प्रदान कर दिया है। The better covenant gives us forgiveness instead of condemnation, grace instead of guilt, and life instead of death. Everything we have is because of Christ Jesus. बेहतर वाचा हमें दोष के स्थान पर क्षमा, अपराध बोध के स्थान पर अनुग्रह और मृत्यु के स्थान पर जीवन प्रदान करती है। जो कुछ हमारे पास है बस प्रभु यीशु मसीह के कारण है। As we continue hosting the ark, let us live
with confidence, gratitude, and faith, knowing that we belong to a better covenant established forever through Christ. जब हम होस्टिंग दी आर्क की इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो आइए विश्वास, धन्यवाद और निडरता के साथ जीवन बिताएं, क्योंकि हम उस बेहतर वाचा का हिस्सा हैं जिसे प्रभु यीशु मसीह ने सदा के लिए स्थापित किया है। Thank you for joining us today once again, and may the blessings of the better covenant overflow in your life, family, and in your ministry. आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। बेहतर वाचा की सभी आशीषें आपके जीवन, आपके परिवार और आपके सेविका में भरपूर हो। Thank you all of you.